Hello everyone, this is Dr. Krup Pasavda and our today's topic of discussion is defenses in medical negligent shoots. So if you are new to this channel, consider subscribing and sharing, and if you want more videos, you can visit the description box. So let us directly enter into the topic defenses available against medical negligence. So the medical practitioner must prove that there is no duty of care towards the patients. Here the word duty of care is very important. Duty of care means the responsibility of a person or any organization to take all the reasonable measures that could not harm to the individual or person. So the thing you need to prove is there is no duty of care towards the patient. The next one is a medical practitioner who has treated a patient must prove that they have provided treatment to the best of their ability with due care and that their chosen treatment is suitable per the medical norms. So ये चीज भी प्रूव करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट दी हुई है वो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी विथ ड्यू केयर, राइट? Another defense is that available to the medical practitioner is to prove that the patient did not suffer any injury from the treatment he performed. यानी कि जो भी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट परफॉर्म किया हुआ है उससे जो है पेशेंट को इंजरी नहीं हुई है, ये भी डॉक्टर को प्रूव करना पड़ेगा. Sometimes the medical practitioner is not to blame for an injury caused after the treatment. Even after taking the proper medicine, the wound is caused by the negligent act of the patient. यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को तब भी नहीं ब्लेम किया जा सकता फॉर एन इंजरी कि अगर वो इंजरी प्रॉपर मेडिकेशन के बाद पेशेंट के निग्लिजेंस से अगर हुआ हो, राइट? एंड in that case the medical practitioner has a valid defense against medical negligence stating that the negligent act of the petitioner itself caused the इंजरी. यानी कि जो पेशेंट है, जो पिटिशनर है, उनकी गलती की वजह से ये जो इंजरी है वो हुई है. If a patient fails to disclose their medical history or mixes the prescription given by the medical practitioner, the medical practitioner may not be held liable for any resulting injury. यानी कि अगर पेशेंट की गलती है, पेशेंट अपनी कोई मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज नहीं करता है या तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर्स के मिक्सअप करता है, देन ऑल्सो डॉक्टर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्टिंग इंजरीज. इसके पीछे हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस भी लिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे. The medical practitioner has a defense under section 87 to 93 of IPC to protect themselves from criminal liability. नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ सेक्शंस देखेंगे, वहां पे जो है वो कंसेंट का जो है एक पार्ट दिखाया गया है कि कैसे जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफेंस के तौर पे ये यूज कर सकते हैं. द सेक्शंस ऑफ आईपीसी डिफेंड द मेडिकल प्रैक्टिशनर अगेंस्ट criminal liability where the injury was caused by the medical practitioner when consent was given either by the injured party or their legal heirs. यानी कि कंसेंट दी गई है इंजर्ड पार्टी या तो इंजर्ड पर्सन के द्वारा या तो फिर उनके लीगल हेयर्स के द्वारा, राइट? सो अभी हम एक के बाद एक देखेंगे. द फर्स्ट वन इज सेक्शन 87 आईपीसी. अ पर्सन मोर देन 18 years ऑफ एज कैन गिव वैलिड कंसेंट. अगर कोई पर्सन 18 साल से ज्यादा है तो वो वैलिड कंसेंट दे सकता है टू सफर एनी हार्म दैट मे रिजल्ट फ्रॉम एन एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉट नोन टू कॉज डेथ और ग्रेवियस हर्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कंसेंट दिया हुआ है मीन्स ही नोज कि उनके साथ क्या होने वाला है इफ इट इज मोर देन 18 years ऑफ एज. कंसेंट को नेगेटिव टर्म्स में भी सेक्शन 90 आईपीसी में दिखाया गया है, जो कि हमने ऑलरेडी कंसेंट के वीडियो में आपको पहले ये चैनल में बोला था. सेक्शन 88 आईपीसी. अ पर्सन कैन गिव वैलिड कंसेंट टू सफर एनी हार्म विच में रिजल्ट फ्रॉम एन एक्ट नॉट इंटेंडेड और नॉन टू कॉज डेथ डन इन गुड फेथ और हिज बेनिफिट. अगर कोई काम वैलिड कंसेंट के साथ गुड फेथ या तो पेशेंट के बेनिफिट में अगर किया गया हो, देन ऑल्सो यहां पे जो है प्रोटेक्शन मिलता है.
The third one is Section 89 IPC. A child less than 12 years of age and an innocent person cannot give valid consent to suffer any harm that may result from an act done in good faith and for his benefit. तो यहां पे क्या करेंगे? इफ ही और शी इज नॉट वैलिड राइट टू गिव कंसेंट, देन द कंसेंट ऑफ अ पेरेंट और गार्डियन शुड बी टेकन. सो अगर कंसेंट पेरेंट या तो फिर गार्डियन से लिया हुआ है तो भी ये जो कंसेंट है वो वैलिड है इफ अ चाइल्ड इज लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज. सेक्शन 92 आईपीसी डील्स विद इमरजेंसी केसेस. सर्टेन टाइम्स क्या होता है, डॉक्टर के पास इमरजेंसी आती है जहां पे डॉक्टर को कंसेंट लेने का टाइम नहीं होता है. यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हेड इंजरी रिक्वायरिंग अर्जेंट decompression. It states that any harm caused to a person in good faith, even without the person's consent, is not an offense if the circumstances are such that person can't signify consent and has no guardian or other person in lawful charge of him. पेशेंट की भी सिचुएशन ऐसी नहीं है क्योंकि इमरजेंसी है कि वो कंसेंट नहीं दे सकता. और कभी कभी क्या होता है जैसे कि एक्सीडेंट केसेस और अदर केसेस में उनके साथ उनके गार्डियंस भी नहीं होते हैं. सो फ्रॉम हुम इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट, की जिनके पास से डॉक्टर कंसेंट ले सके. तो अगर इमरजेंसी में अगर डॉक्टर के द्वारा गुड फेथ में कोई अच्छा काम या तो फिर पेशेंट के बेनिफिट में अगर कोई काम किया गया है, देन ऑल्सो इट इज अ लीगल वर्क. It is possible to obtain consent in time for the thing to be done in benefit. In an emergency, the law implies consent, right? So, इमरजेंसी में डॉक्टर जो है अगर गुड फेथ में कुछ करता है तो भी जो है वो इट इज अ लीगल थिंग, नॉट द निग्लिजेंट एक्ट, बट इट शुड बी इन अ गुड फेथ, राइट? ओके. एंड सेक्शन 93 ऑफ आईपीसी, communication made in good faith. No communication made in good faith is an offense because of any harm to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that patient, right? So communication made in good faith. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे जो दिखाई गई है आपको, ये मैं फर्स्ट सेंटेंस का फिर एग्जांपल भी दूंगा, दैट नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस. पेशेंट को कैंसर है और अगर आप ये सोचोगे कि अगर मैं पेशेंट को बताऊंगा कि उनको कैंसर है तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते. दैट इज वाई हियर दे हैव रिटन दैट नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस. आपको पेशेंट को बताना ही पड़ेगा कि आपको ये चीज है. आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप पेशेंट को अगर बताएंगे तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी आ सकता है, राइट? सो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ. नाउ contributory negligence, any unreasonable conduct or absence of ordinary care on the part of the patient or his attendant which combined the doctor's negligence contributed to the injury complaint. So the name itself suggests that there is some contribution from the patient's side. So यहाँ पे unreasonable conduct और absence of ordinary care on the part of patient or his attendant जो है उसका यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन रहता है डॉक्टर के निग्लिजेंस के साथ. सो उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी निग्लिजेंस बोलते हैं. द इंजरी वुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट पेशेंट्स निग्लिजेंस. यहाँ पे इंजरी जो है पेशेंट्स के निग्लिजेंस अगर नहीं होता है तो वो इंजरी नहीं होती है. दैट इज वाई इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम पेशेंट साइड. एग्जाम्पल्स, नॉट गिविंग करेक्ट हिस्ट्री टू डॉक्टर, not following the instruction and advice of doctor, failure to attend treatment at prescribed time, and tampering with wound dressing or plaster, leaving the hospital against doctor's advice, that is called as lama, failure to take further assistance or follow up. Medical legal aspects, here the doctor has to prove that plaintiff यानी कि patients has contributed for the injury because of want of care or wrong act, यानी कि पेशेंट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है या तो फिर जिन्होंने अपील किया हुआ है प्लेंटिफ उन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है. हियर प्लेंटिफ फेल्स टू टेक रीजनेबल केयर एंड कॉज इज हार्म. एंड if this plea is accepted by court, the doctor is not held responsible for damages caused to the patient. और अगर डॉक्टर ये प्रूव करने के लिए सक्षम है, राइट, देन doctor will not be held responsible for the damages caused to the patient.
Thank you for watching this video. You can subscribe this channel, click bell icon and share this video amongst your friends. Thank you.